अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 250 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाए थे, दोनों की हमने डेफिनेशंस की थी और डिफरेंट एग्जांपल्स दे के मैंने आपको इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन किया था। इन द एंड हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफरेंसेस भी किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। टॉपिक आपका है 11.3। लेट स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। 11.3 Special Theory of Relativity. The theory of relativity deals with how observers in different state of relative motion describe physical phenomena. The special theory of relativity addresses problem involving inertial non-accelerating frame of reference. There is another theory called the general theory of relativity that deal with problems involving frame of reference that are accelerating relative to one another. The special theory of relativity is based on two postulates which can be stated as follows. Number one, the laws of physics are the same in all inertial frame, that is principle of relativity. Number two, the speed of light in free space has the same value for all observer regardless of the state of motion of the source or the observer. Principle of constancy of light. The first postulate generalized that the fact that all physical laws are the same in frame of reference moving with uniform velocity relative to one another. If the laws of physics differed for observer in relative motion, those observer could determine which was stationary and which was moving. However, such a distinction does not exist, implying that there is no way to detect absolute uniform motion. The second postulate states the experimental fact that the speed of light in free space is a universal constant denoted as c is equals to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Since c is constant, space and time become relative. For example, if you are sitting in a train moving at the speed of light and you hold up a mirror in front of you at arm's length, you will see your reflection in the mirror. This is because, according to the principle of relativity, no experiment can detect the constant motion of the train relative to the person inside it. These simple postulates have far reaching consequences. They include phenomena such as slowing down of clocks and the contraction of length in moving reference frame as observed by the stationary observer. Some interesting result of the special theory of relativity can be summarized as follow without going into their mathematical details. हमने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया बेटे, उस क्या टॉपिक था हमारा? था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन इसका आ सकता है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि ये पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको हेडिंग देके जो है इसको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने आपको भी कहा ना कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने इसके ऊपर लिखना होगा तो किस तरह से आप हेडिंग दोगे ये भी मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब इसको राइट करेंगे तो सबसे जो फर्स्ट हमारी हेडिंग होगी डैट इज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप पहले क्या लिखेंगे? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। What is theory of relativity? उसको आप डिफाइन करोगे। The theory of relativity is concerned with the way in which observer who are in the state of relative motion describe physical phenomena. आपकी बुक में भी ये लाइन लिखी हुई है जो मैंने अभी रीड की, ये बेटे theory of relativity deals with how observer in different state of relative motion describe physical phenomena. इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो और इसके ऊपर हेडिंग दे दो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है बेटे वो कंसर्न है किसके साथ? एक ऐसी थ्योरी है जिसमें ऑब्जर्वर जो भी ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या है? जो अब चीज़ों को, डिफरेंट फिनोमेनास को ऑब्जर्व कर रहा है, वो इन द स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन है और विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी कि जिसके साथ भी वो अपने आप को जो है रिलेटिव मोशन के साथ, मतलब अगर वो कार में है, अगर वो ट्रेन में है, अगर वो एरोप्लेन में है, तो
उस ऑब्जर्वर का डिफरेंट स्टेट ऑफ रिलेटिव मोशन में होना और उनको फिजिकली जो है उन फिनोमेनस को डिस्क्राइब करना, वो सारा का सारा हम डील करेंगे। किस में पढ़ेंगे बेटे? हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। उसके बाद यहाँ पे दो मेन पॉइंट्स आते हैं, दोनों को आप अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो थ्योरीज आ रही हैं, एक आ रही है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक हमारे पास आ रही है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दो थ्योरीज आ रही हैं, ठीक है। इन दोनों को आपने अलग अलग डिफाइन करना है, दोनों की अलग अलग हेडिंग देनी है। अगर अपनी बुक पे आओ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देयर इज अनदर थ्योरी कॉल्ड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और नीचे लिखा हुआ है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब इन दोनों को हम अलग से हेडिंग दे के बेटे फिर लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप लोग हेडिंग दोगे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। व्हाट इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेटे वो रिलेटिव थ्योरी है जिसमें आप डील करते हैं विद द प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम को हम डील करेंगे, उन प्रॉब्लम का सलूशन हम निकालेंगे, उनको हम पढ़ेंगे जिनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जो है इन्वॉल्व होंगे। हमने एक्सेलरेटेड में पढ़ के आया था, एक्सेलरेटेड कौन से होते हैं? जिनमें एक्सेलरेशन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होती, ठीक है। तो ये उसी चीज़ की बात हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे दो तरह की थ्योरीज आ गई हैं, एक जनरल थ्योरी और एक कौन सी आ रही है? स्पेशल थ्योरी आ रही है। जनरल थ्योरी में हेडिंग दे के आप क्या लिखोगे कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये डील करती है उन प्रॉब्लम्स के साथ जिनमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड होंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है, ये लिखें रिलेटिव टू वन अनदर। मैंने सिंपल वर्डिंग बता दी कि विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपकी मर्जी है, आप अपनी बुक वाला लिख लो, चाहे जो मैंने आपको बताया वो लिख लो। मैं दोबारा से डिक्टेट कर देती हूँ जो मैंने आपको कहा। मैंने क्या कहा कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्लियर? अगली थ्योरी की तरफ चलते हैं, दैट इज नोन एज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप दोगे, पहले आपने क्या दी? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आप क्या दोगे? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। What is special theory of relativity? The special theory of relativity deal with the problem involving inertial frame of reference, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो फ्रेम जिसमें विच आर नॉन एक्सेलरेटेड, जो कि नॉन एक्सेलरेटेड हों विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर आपको याद हो, जब हमने कल इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं बेटे दे आर नॉन एक्सेलरेटेड। पढ़ाया था ना मैंने, डिफरेंसेस में भी मैंने राइट करवाया था। नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो किसकी इक्वल होगी? डैट इज इक्वल टू जीरो। अब समझ आई? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेटे वो थ्योरी है जो डील करती है उन प्रॉब्लम को जिसमें इन्वॉल्व होते हैं क्या? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो फ्रेम विच आर नॉन एक्सेलरेटेड, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आपने पहले उसकी स्टेटमेंट लिख दी हेडिंग देके, फिर आपने नीचे बताना है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पॉस्टुलेट्स हैं। क्या हैं उसके? दो पॉस्टुलेट हैं। आप तो लिखोगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंसिस्ट ऑफ टू पॉस्टुलेट्स विच आर स्टेटेड एज फॉलोज। आपकी बुक में दोनों पॉस्टुलेट जो हैं इसके राइट किए गए हैं। वन बाय वन मैं दोनों पॉस्टुलेट्स को स्टेट भी करूँगी, आपको बताऊँगी, एंड देन हम उनकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने फर्स्ट जो उसका पॉस्टुलेट है उसकी बात करेंगे। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है हमारा कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी इसको कहा जाता है। क्या पॉस्टुलेट है कि जो फिजिक्स के लॉज हैं बेटे वो सेम है। कहाँ सेम है? इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र ही नहीं हो रहा। स्पेशल थ्योरी में हमेशा हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जिक्र करेंगे। तो पहला पॉस्टुलेट्स का क्या हो गया कि जो फिजिक्स के लॉज हैं बेटे वो ऑल इनर्शियल फ्रेम्स में क्या होंगे? सेम होंगे। और इस पॉस्टुलेट को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ये रिलेटिविटी का प्रिंसिपल है। क्लियर? अच्छा, अब ये तो हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, जो आपकी बुक में स्टेटमेंट दी हुई है, आपने फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट का लिख दिया, इसको आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है, ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। उसके बाद आपने इसी अपने पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपकी बुक में इसकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट जो है ये
जर्नलाइजेशन है किस चीज़ की बेटे, फिजिकल लॉज की, कि फिजिकल लॉज जो हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होते हैं, सेम होते हैं सबके सामने, ठीक है। और फिजिक्स के जो है जब हम रिलेटिव मोशन में देखेंगे तो ऑब्जर्वर के लिए ये क्या होंगी, ये लॉज जो हैं डिफरेंट होंगे, और वो ऑब्जर्वर जो है विच वॉज स्टेशनरी, जो पहले के स्टेशनरी था, एंड विच वॉज मूविंग। दो तरह के ऑब्जर्वर यहाँ पे अगर आप लो, एक ऑब्जर्वर वो जो कि रेस्ट पोजीशन पे है, एक ऑब्जर्वर वो लें जो हमारा मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दो तरह के ऑब्जर्वर हो गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों के लिए जो लॉज हैं फिजिक्स के वो क्या होंगे, वो डिफरेंट होंगे। कहाँ डिफरेंट होंगे, इन रिलेटिव मोशन। दो ऑब्जर्वर कौन से हमने लिए, एक वो जो रेस्ट पोजीशन पे है और एक वो जो कि मूव कर रहा है। तो इन दोनों के लिए जो फिजिक्स के लॉज हैं वो इन रिलेटिव मोशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। हाउएवर कभी कभार ऐसे भी हो सकता है बेटे कि डिस्टिंक्शन जो है वो एग्जिस्ट ना करती हो। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि दो ऑब्जर्वर हैं, एक रेस्ट पे है और एक जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों के लिए डिफरेंट टाइप की ऑब्जर्वेशंस होंगी, लेकिन ये जो बात मैं कह रही हूँ ये हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती। कभी कभार इसके ऑपोजिट भी हो जाता है। इसके ऑपोजिट क्या हो सकता है कि दोनों ऑब्जर्वर के लिए देर इज़ नो वे, उनके पास कोई ऐसा वे नहीं होता, कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि वो एब्सोल्यूट यूनिफॉर्म मोशन को डिटेक्ट कर सकें। ऐसे भी कभी कभार हो जाता है। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फर्स्ट पास्टुलेट। फर्स्ट पास्टुलेट को हम लोग इक्विवेलेंस ऑफ फिजिकल लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। आपने पहले उसकी स्टेटमेंट लिखनी है, देन मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताई, उसी को आपने एक्सप्लेन करना है। अब हम बात करते हैं बेटे सेकंड पास्टुलेट की। सेकंड पास्टुलेट की तरफ आते हैं। सेकंड पास्टुलेट क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है, जिस लाइट से सन से लाइट जो है हमारी अर्थ तक आती है, हमारे तक आती है, स्पीड ऑफ लाइट जो फ्री स्पेस में है उसकी वैल्यू तमाम के तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम है रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती कि किसी भी सोर्स का या ऑब्जर्वर का स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसको किस तरह से आप राइट करोगे, आप राइट करोगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस हैज़ द सेम वैल्यू फॉर आर ऑब्जर्वर रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ लाइट सिंपल फिनोमेना है। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ, स्टेटमेंट अपने एज इट इज पॉस्टुलेट ये पूरा का पूरा याद करना है। इस पॉस्टुलेट के मुताबिक क्या, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सोर्स। सोर्स क्या होता है, जहाँ से मतलब अगर आप साउंड का सोर्स देख रहे हो तो जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम साउंड का सोर्स कहेंगे। अगर कोई बल्ब है जहाँ से लाइट आ रही है तो हम कहेंगे ये लाइट का सोर्स है। तो सोर्स होता है वो चीज़ जहाँ से चीज़ जनरेट हो रही है। और आप खड़े हुए लाइट देख रहे हो या आप खड़े हुए साउंड सुन रहे हो तो आप क्या होगे, यू आर ऑब्जर्वर। दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक सोर्स आ गया, एक ऑब्जर्वर आ गया। आप समझ आ गई सोर्स और ऑब्जर्वर किसको कह रहे हैं हम लोग। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है बेटे उसकी वैल्यू जो है वो तमाम के तमाम ऑब्जर्वर के लिए क्या होती है, सेम होती है रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो आपका सोर्स है या जो आपका ऑब्जर्वर है वो किस स्टेट ऑफ मोशन में है। और इस पॉस्टुलेट को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। या इसको सेकंड पॉस्टुलेट की जब हम हेडिंग देंगे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट एज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, तो आपको पता है। हेडिंग दोगे, हेडिंग के बाद आप सेकंड स्टेटमेंट जो है पास्टुलेट की वो लिखोगे, सेकंड पास्टुलेट लिखोगे और फिर आप बता दोगे कि इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, या हम इसको जो सेकंड पास्टुलेट है इसको स्पीड ऑफ लाइट एज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। हमने क्या पढ़ लिया, आपको हम बात करेंगे स्पीड ऑफ लाइट की। स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटे डैट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये रिगार्डलेस ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स है। किसी भी सोर्स से लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। सबसे बड़ा सोर्स तो आपको पता है सनलाइट है, इसके अलावा बल्ब हैं या ट्यूब लाइट्स हैं आपके घरों में, जो भी कुछ, दे ऑल आर सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है।
सोर्स ऑफ लाइट जो है इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि स्टेट ऑफ मोशन लाइट का क्या है, बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। लाइट की स्पीड हमेशा जो है वो सेम रहती है। कितनी स्पीड है लाइट की? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। स्मॉल सी से इसको हम राइट करते हैं, 9-10 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो लाइट की स्पीड, ठीक है। तो लाइट की स्पीड क्या है? यूनिवर्सल है हमारे पास। सी जो है वो कांस्टेंट है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल कांस्टेंट ही कहेंगे। इज डेट क्लियर? ये हमने क्या कर लिया? सेकंड पास्टुलेट पढ़ा। सेकंड पास्टुलेट को हम और क्या कुछ कहते हैं वो मैंने आपको बताया। सेकंड पास्टुलेट क्या है वो आपको बताया। अब हम आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप सेकंड पास्टुलेट की हेडिंग देंगे, सेकंड पास्टुलेट लिखेंगे, और उसको आपने सारा उसकी स्टेटमेंट लिखी। उसके बाद आप क्या करोगे? एक्सप्लेनेशन लिखोगे। सेकंड, आपने इमेजिन करना है कि यू आर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन। आप किसी भी ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और वो ट्रेन जो है डैट इज़ मूविंग वेरी फास्ट। उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इवन क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी स्पीड उसकी तेज़ है ट्रेन की, जितनी के मतलब बिल्कुल क्लोज आ गई है टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, ये आपने इमेजिन करना है जस्ट कि यू आर सिटिंग इनसाइड अ ट्रेन दैट इज मूविंग वेरी फास्ट इवन क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि उसकी स्पीड इतनी तेज़ है कि वो बिल्कुल उसके जो है करीब करीब आ गई है, किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। नाउ आपने क्या करना है? आपने एक मिरर को अपने फेस के बिल्कुल सामने होल्ड करना है। एक मिरर को अपने फेस के सामने लेके आना है। इवन कि ट्रेन जो है वो बहुत फास्ट बेटे मूव कर रही है, लेकिन आप लोग स्टिल यानी कि एक ही पोजीशन पे आप अपने मिरर के अंदर जो है वो अपना मतलब फेस देख रहे हो। आप, ये नहीं है कि आपका मिरर हिल रहा है या आपका फेस हिल रहा है, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। स्पीड ट्रेन की बहुत तेज़ है, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, अगली यहाँ पे लिखी हुई है आपकी एग्जाम्पल, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने आपको क्या कहा कि इफ़ यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड यू होल्ड अप ए मिरर इन फ्रंट ऑफ योर आर्म्स लेंथ। अब आप क्या किया? आपने अपना रिफ्लेक्शन देखा मिरर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी कि जब आपने मिरर पकड़ा, ठीक है, आपने अपना रिफ्लेक्शन देखा इसमें मिरर में जस्ट लाइक नॉर्मल के मतलब अगर आप घर में भी बैठे हो, किसी चेयर पे ही बैठे हो, तो जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखोगे ना मिरर में तो ऐसा ही नज़र आएगा। अगर आप इस तरह की स्पीड मतलब एक ट्रेन है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसमें भी अगर आप अपना रिफ्लेक्शन देखोगे तब भी सेम ऑब्जर्वेशन होगी आपकी। समझ आ गई है? यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो है उस वो यहाँ पे ओबे हो रही है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है जो डिटेक्ट कर सके कांस्टेंट मोशन ऑफ ट्रेन को रिलेटिव टू द पर्सन इनसाइड इट। यानी कि कोई भी पर्सन जब ट्रेन के अंदर होगा तो हम क्या करेंगे कि हम कांस्टेंट मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते रिलेटिव टू द पर्सन इनसाइड इट। ये अब देख, इसकी समझ आ गई ना आप लोगों को? आप ट्रेन मूव कर रही है लेकिन आप मूव नहीं कर रहे, आपका मिरर आपके हाथ में है, आप वैसा रिफ्लेक्शन देख रहे हो जैसा आप इवन चेयर पे बैठ के देख सकते हो। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट उसमें अपने सेकंड पास्टुलेट में लिखना है, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आप सिंपल उसको क्या नाम दे सकते हो? स्पीड ऑफ लाइट एज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। के जो लाइट की स्पीड है फ्री स्पेस में बेटे उसकी वैल्यू तमाम के तमाम ऑब्जर्वर के लिए जो है वो क्या होती है? सेम होती है, रिगार्डलेस इस चीज़ के कि मोशन जो सोर्स है या जो ऑब्जर्वर है वो आपका जो है उसकी मोशन पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड नहीं करेगी। इज डेट क्लियर? इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हमने क्या पढ़ लिया? हमने दो तरह की थ्योरीज पढ़ी। एक मैंने आपको पढ़ाई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मैंने आपको बताया कि आप इसकी हेडिंग दोगे, इसको आप आगे इसकी स्टेटमेंट लिखोगे। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसकी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है, आप उसने उसको राइट करना है। उसके बाद हमारे पास क्या आए? हमने पढ़े दो मेन पॉस्टुलेट्स, ठीक है, जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। दोनों पॉस्टुलेट्स को बेटे आपने लिखना है और उनको अंडरलाइन करना है। हर पॉस्टुलेट के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों ने देनी है और ज़रूरी देनी है, जिस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे के एक्सप्लेन की। आफ्टर पॉस्टुलेट्स के बाद उनकी एक्सप्लेनेशन के बाद बेटे जो नेक्स्ट हेडिंग आप दोगे वो क्या दोगे? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम पढ़े हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं, ये हेडिंग आपने देनी है और आप कॉन्सिक्वेंसेज लिखोगे। ये जो सिंपल पॉस्टुलेट्स हैं दे हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। इनके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आप सिंपल इनके लिए जो वर्ड लिखोगे, जब रिटन फॉर्म में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? दे हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। और
इसमें हमारे पास बहुत सारे फिनोमेना आ जाते हैं। कॉमन एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आप वही यहाँ पे एग्जांपल सारी लिखोगे, आपकी बुक में भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। स्लोइंग डाउन ऑफ क्लॉक्स, और दूसरी एग्जांपल आप क्या दोगे, कंट्रैक्शन ऑफ लेंस इन मूविंग रेफरेंस फ्रेम एज ऑब्जर्व बाय द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर होगा, और जो आपके हम जिनके साथ रेफरेंस कर रहे हैं, जिनके साथ उनकी मोशन देखकर चेक कर रहे हैं, वो क्या है आपका, एक तो स्लोइंग डाउन ऑफ क्लॉक्स है, और सेकंड आपका क्या है, कंट्रैक्शन ऑफ लेंस है। ठीक है, तो ये आपने हेडिंग क्या दे देनी है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसमें आपने ये दोनों एग्जाम्पल्स लिखनी है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपका आएगा रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी, स्पेशल थ्योरी पढ़ी, इसके रिजल्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम समराइज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू देयर मैथमेटिकल डेरिवेशन, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जिनके ज़रिए हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हम देंगे, हम उनको ईजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू मैथमेटिकल डेरिवेशन, यानी कि उन तमाम रिजल्ट्स के लिए हमें मैथमेटिकल डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। 4 यहाँ पे मेन रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे। एक आएगा द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनियसली, दूसरा आएगा टाइम डायलेशन, थर्ड हमारे पास क्या आएगा, लेंथ कंट्रैक्शन, फोर्थ वन इज मास वेरिएशन, एंड फिफ्थ वन इज मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। वन बाय वन इन तमाम के तमाम रिजल्ट्स को बेटे हम स्टडी करेंगे। एक आज पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह, बाकी 3 जो है वो कमिंग लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे आएगा रिजल्ट, वो क्या है, द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। ठीक है, द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। ठीक है, इफ 2 इवेंट्स इन डिफरेंट लोकेशंस आर ऑब्जर्व्ड बाय वन ऑब्जर्वर टू बी साइमल्टेनियस, दे विल जनरली नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज साइमल्टेनियस बाय अनदर ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस moving relative to the first observer. In other words, whether 2 events are seen as simultaneously depend on the observer frame of reference. Consider a train equipped with light operated doors. The light switch is located in the center of the roof and is operated by a traveler standing in the middle of the compartment. When the train is traveling at the half the speed of light, the traveler turns on the light. The light travels forward and backward at equal speed and reaches both doors at the same time. Consequently, the traveler sees both doors opening simultaneously. However, an observer outside the train will see the back door open before the front door. This is because the back door is moving toward light waves while the front door is moving away from the light waves. हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं रिजल्ट, किस चीज़ के रिजल्ट, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। पहला रिजल्ट हमने यहाँ पे जिसकी मैंने भी रीडिंग की है वो क्या है, हमारे पास आता है रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। बहुत इजी है, इसको भी कोशिश मैं करूँगी कि आपको हेडिंग वाइज इसको समझाऊँ, अगर इस पर भी नोट आता है तो आप उसको भी हेडिंग वाइज ही जो है वो लिखो। अब इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, अगर 2 इवेंट, मैंने क्या वर्ड बोला कि 2 इवेंट, कोई से 2 इवेंट जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में हो रहे हैं, लेकिन वो आपको जब आप उनको देखते हो तो आपको ऐसे लग रहा है कि वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं बाय वन ऑब्जर्वर, यानी कि अब हमारे पास 2 ऑब्जर्वर हैं जो दोनों एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन ही हो सकते हैं, जाहिर सी बात है जो ऑब्जर्वर हैं हमारे पास। अब सपोज करो कि 2 ऑब्जर्वर हैं, 2 इवेंट हो रहे हैं लेकिन एक ही टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वर को फील हो रहा है कि वो इवेंट जो है, वो दोनों इवेंट जो हैं वो एक ही टाइम पे हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जर्वर है उसको क्या फील हो रहा है कि जो दोनों इवेंट हैं बेटे वो साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे, यानी कि एक साथ इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक उन दोनों में डिफरेंस है, एक इवेंट पहले हो जाता है और एक इवेंट बाद में हो जाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि वेदर 2 इवेंट हैपन एट द सेम टाइम या एट डिफरेंट टाइम, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। समझ आ रही है, हमने क्या कहा, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चलेंगे। आपके पास 2 इवेंट हैं,
दोनों इवेंट जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अब हमारे पास उन इवेंट्स को देखने के लिए क्या चीज़ है, दो ऑब्जर्वर मौजूद हैं। एक ऑब्जर्वर वो है जिसको लग रहा है कि ये दोनों इवेंट जो हैं साइमल्टेनियसली यानी कि इकट्ठे एक ही टाइम पे शुरू होते हैं और एक ही टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है कि ये दोनों इवेंट जो हैं ये एक ही टाइम में नहीं होते, एक पहले होता है और एक बाद में होता है। अब ऐसा क्यों है, वाई, इस तरह क्यों लग रहा है? अब कौन सा जो ऑब्जर्वर है वो ठीक कह रहा है? नो वन नोज। ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, ऐसा क्यों होता है? तो इस तरह क्यों होता है बेटे, इसका सिंपल आंसर है क्योंकि जो दोनों ऑब्जर्वर हैं बेटे, इवेंट जो हैं वो दोनों इवेंट एक ही टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो दोनों ऑब्जर्वर हैं उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो जो दो इवेंट जो सेम टाइम पे होंगे वो डिपेंड कर रहे होते हैं ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। इज डेट क्लियर? उसके बाद सेकंड एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, फिर अगेन एग्जांपल ट्रेन की है। मेरे ख्याल से इस चैप्टर में हमने सारी एग्जांपल ट्रेन ही से जो है वो करनी है, ट्रेन की एग्जांपल ही है। यहाँ पे भी हमारे पास ट्रेन की एग्जांपल आती है। आपने सपोज करना है कि इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल में आपने क्या करना है कि आपके पास एक ट्रेन है, ट्रेन जो है वो इक्विप्ड है किसके साथ, लाइट ऑपरेटेड डोर के साथ, यानी कि ट्रेन के अंदर जो डोर्स लगे हुए हैं वो कौन से डोर हैं, वो हैं लाइट ऑपरेटेड डोर्स, यानी कि आप ये कह सकते हो कि वो लाइट से जो है ऑपरेट हो रहे हैं, लाइट की वजह से वो दरवाज़ा खुलेगा ट्रेन का और लाइट ही की वजह से वो दरवाज़ा बंद होगा, ठीक है। लाइट ऑपरेटेड डोर्स हैं। लाइट स्विच जो है वो जो रूफ है, जो अंदर से जब छत देख रहे होते हो ना आप लोग ट्रेन की, ठीक है, बाहर से हो तो वो तो हम रूफ के बिल्कुल सेंटर में जो है आपके पास क्या लगी हुई है, एक लाइट स्विच लगा हुआ है ट्रेन के, ठीक है। और जो ट्रैवलर है वो भी कंपार्टमेंट, जो ट्रेन का पूरा डिब्बा होता है ना उसको कंपार्टमेंट हम कहते हैं, जो ट्रेन का कंपार्टमेंट है उसके बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे जो है एक ट्रैवलर जो है वो खड़ा है। और यहाँ पे हमने जो ट्रैवलर लेने हैं बेसिकली हम दो यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और दो ऑब्जर्वर हमारे पास होंगे। दोनों ऑब्जर्वर इनसाइड और आउटसाइड जो है देखेंगे कि दो डोर है ना, अंदर की तरफ है से और एक बाहर की तरफ से आपको नजर आएगा, ठीक है। दोनों डोर जो हैं वो एक ही टाइम पे खुलते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, अच्छा बेटे, हम क्या पढ़े हैं कि अब जो बोथ ऑब्जर्वर हैं इनसाइड एंड आउटसाइड डोर ओपन साइमल्टेनियसली, उनको ऐसे लगेगा कि इनसाइड से और आउटसाइड से डोर जो हैं वो एक ही टाइम में ओपन हो रहे हैं। अब इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको समझो, आपकी बुक में ना पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन मैं पॉइंट वाइज आपको बता रही हूँ। अगर हम इसको दो पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं, एक हम कर लेते हैं इनसाइड द ट्रेन और एक हम पॉइंट बना लेते हैं आउटसाइड द ट्रेन। दोनों जगहों पे इनसाइड द ट्रेन एंड आउटसाइड द ट्रेन हमने पढ़ना क्या है, हमने ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव जो है वही देखेंगे हम इसका, ठीक है। ऑब्जर्वर क्या चीज़ नोट कर रहा है, ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन क्या है। पहले हम बात करेंगे इनसाइड द ट्रेन कि इनसाइड द ट्रेन जो है उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे ऑब्जर्वर की। आप लोग हेडिंग दोगे इनसाइड द ट्रेन। जब बेटे ट्रेन मूव करेगी, अब इस केस में ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं इस केस में हमारी जो ट्रेन है वो मूव कर रही है हाफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो स्पीड की लाइट है उसकी स्पीड से, यानी कि लाइट की स्पीड से ट्रेन की स्पीड कितनी है, हाफ है। जो सी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3 × 10⁸ उसका हाफ कर लो आप लोग, यानी कि ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड के आधे के बराबर है, हाफ के इक्वल है। इज इट क्लियर? अच्छा, ट्रेन जब मूव करेगी एट द हाफ द स्पीड ऑफ लाइट, जो ट्रैवलर है वो क्या करेगा, टर्न ऑन द लाइट, उसने क्या करना है, लाइट को ऑन कर देना है। किसकी लाइट को बेटे, ट्रेन की लाइट को ऑन करना है। लाइट वेव जो हैं वो ट्रैवल करेंगी फॉरवर्ड और बैकवर्ड एट इक्वल स्पीड, ठीक है। जो लाइट जब ऑन की उसने तो क्या चीज़ जनरेट हुई, लाइट वेव जनरेट हुई। लाइट वेव जनरेट जब हुई तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल स्पीड के साथ जो है वो दोनों डोर्स की तरफ, यानी कि कंपार्टमेंट के शुरू में भी डोर था, कंपार्टमेंट के एंड पे भी डोर था, और वेव जो हैं वो मूव्स कर रही हैं फॉरवर्ड भी और बेटे बैकवर्ड भी विद द सेम स्पीड। और इस केस में क्या होगा कि वेव जो हैं वो दोनों दरवाज़ों के ऊपर एक ही टाइम पे पहुंचती हैं, और जो ट्रैवलर है जो ट्रेन के अंदर है वो क्या देखता है, उसकी ऑब्जर्वेशन इस केस में क्या होगी कि वो ऑब्जर्व करेगा कि ट्रेन के दोनों दरवाजे जो हैं, एक दरवाज़ा कंपार्टमेंट के स्टार्ट में था, एक दरवाज़ा कंपार्टमेंट के बाहर था,
और ऑब्जर्वर अब क्या उसकी ऑब्जर्वेशन होगी कि उसने देखा कि दोनों डोर एक ही टाइम में, यानी कि बोथ डोर्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में एक साथ इकट्ठे ट्रेन के दोनों दरवाजे खुले। और ये ऑब्जर्वेशन किसकी थी? ये ऑब्जर्वेशन उस ऑब्जर्वर की थी जो ट्रेन के अंदर था। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे ऑब्जर्वर की, वो ऑब्जर्वर जो ट्रेन के बाहर था। आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? आप इसकी हेडिंग दोगे, आप सिंपल क्या लिखोगे? आउटसाइड द ट्रेन, ठीक है। अब इस केस में वो ऑब्जर्वर जो कि ट्रेन के बाहर होगा उसको ये सब कुछ नजर नहीं आएगा, उसकी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं होगी, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी बेटे? डिफरेंट होगी। उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि जो बैक डोर है वो पहले खुला है, बिफोर द फ्रंट डोर, यानी कि जो पिछला दरवाजा है, जो कंपार्टमेंट का आखिर वाला दरवाजा है वो पहले खुला है और जो पहले वाला दरवाजा था वो बाद में खुला है। जबकि जो इनसाइड वाला ऑब्जर्वर था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि दोनों दरवाजे एक ही टाइम पे खुले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये इन दोनों की ऑब्जर्वेशन में क्या आ गया? चेंज आ गया। क्यों चेंज आया? बिकॉज बैक डोर इज मूविंग टूवर्ड द लाइट। जो पिछला दरवाजा था वो किसकी तरफ मूव कर रहा था बेटे? डैट इज मूविंग टूवर्ड द लाइट। ये मेन रीजन है इसका। और जो फ्रंट डोर था वो क्या था? डैट इज मूविंग अवे फ्रॉम, वो लाइट से पीछे जा रहा था, और जो बैक डोर था वो लाइट की तरफ जा रहा था। इसीलिए बेटे क्या हुआ कि बैक डोर जो है वो पहले खुला बिफोर फ्रंट डोर। इज डेट क्लियर? आपने इसी तरह से जो हमारा पहला इसका रिजल्ट था, जो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के किए हैं, आपने पहला इसका रिजल्ट है द रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी, यानी कि जब कोई चीज़, कोई भी इवेंट साइमल्टेनियसली होता है, एक ही साथ होता है, उसमें हम लोग किस तरह से उसको परसीव करेंगे, ये हमने वो रिजल्ट पढ़ा। इस रिजल्ट को आप पहले इसकी डेफिनेशन करोगे। डेफिनेशन में बेटे मैंने क्या डेफिनेशन बताई? मैंने आपको क्या कहा कि इफ़ टू इवेंट्स हैपन इन डिफरेंट प्लेसेस एंड आर सीन हैपनिंग एट द सेम टाइम बाय वन ऑब्जर्वर, they may not appear simultaneously to another observer which is moving compared to the first one, ठीक है। ये आप इसकी स्टेटमेंट देंगे, देन इस स्टेटमेंट को आप एक्सप्लेन करोगे। और एक्सप्लेन कैसे करोगे? ट्रेन की एग्जांपल जो मैंने आपको दी है वही यहाँ पे आप सारी की सारी राइट करेंगे। उसके बाद ट्रेन की एग्जांपल में भी आगे फर्दर सब हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं, दो ऑब्जर्वर की, एक कौन सा है जो इनसाइड द ट्रेन है और एक कौन सा है जो आउटसाइड द ट्रेन है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से बेटे इसकी समझ आ गई होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक रिजल्ट हमने आज पढ़ लिया इस थ्योरी का। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट रिजल्ट है डेट इज टाइम डायलेशन, ये मैं इंशाल्लाह आपको कमिंग लेक्चर में पढ़ाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।